بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام ملک کی سرکردہ سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی کی لہر، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ کانفرنس یہ واضح کرتا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بھتہ خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں اور حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورے میں مصروف ہیں۔ ان تمام تر حالات اور واقعات کی روشنی میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل یہ کانفرنس حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ صوبہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے، بصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سخت فیصلہ کرنے پر غور کر سکتی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے کی ابتر معاشی صورتحال، تاریخ کے بلند ترین قرضوں، اقربا پروری اور صوبے میں جاری کرپشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ صوبے میں 9 سال سے قابض حکمرانوں نے 75 سالہ تاریخ میں 900 ارب روپے کے قرضے لے کر غریب صوبے کو مقروض کیا، جبکہ 2007 میں صوبہ 97 ارب اور 2013 میں 300 ارب، جبکہ 9 سالوں میں 900 ارب روپے کا قرضہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ صوبے میں اب تک کوئی میگا پروجیکٹس جو یونیورسٹی، ہسپتال یا ترقیاتی منصوبے کا کوئی جال نہیں بچھایا جا سکا۔ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا۔ آل پارٹیز کانفرنس BRT مداروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، بالخصوص قبائل اضلاع میں آئے روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، باجوڑ سے وزیرستان تک JOI کے رہنماؤں کی پے در پے شہادتوں کی صوبائی حکومت اور اداروں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت امن کی بحالی اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حالیہ دنوں لکی مروت، بنو، وزیرستان واقعات میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقوں سمیت شہری علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اور آئے روز واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ کانفرنس تحریک انصاف صوبائی حکومت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں عددی اکثریت کی بل بوتے پر جو ہیلی کاپٹر بل منظور کیا ہے، وہ محض عمران خان کو نیب مقدمے سے بری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ذاتی مفاد کے لیے امتیازی قانون کی مذمت کی جاتی ہے۔ APC کی نظر میں خیبر پختونخوا جہاں PTI کی حکومت ہے، اگر پنجاب میں آٹے کی قیمت 1350 روپے جبکہ خیبر پختونخوا میں 2600 روپے تک پہنچ چکی ہے،
सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत पूरी तौर पर कम करे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मरकज़ी हुकूमत की आइनी हैसियत के हवाले से सूबाई हुकूमत के मुबैन रवैये को आइन के मुनाफी करार दे। APC मुतालबा करता है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हैसियत को हर लिहाज से तस्लीम करे और उसके खिलाफ जो गैर आइनी इक़दामात की तरफ इशारे किए गए हैं उससे बाज रहे। साथ ही मैं ये एजाज़ भी हासिल कर रहा हूँ कि पेशावर प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए हैं तो उसके नए सदर अरशद अजीज मलिक साहब को और उनकी काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, जिस तरह हालात है उस पर जो APC है, इसके बारे में अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान भी जारी हुआ है। वो कहते हैं इसकी वजह से शर फसाद फैला रहा है। उसको क्या जवाब देंगे? क्या वाकई ये शर फसाद के लिए पार्टी का कुछ कहने का? मेरे ख्याल में ये तमाम पार्टियां बैक आवाज़ कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस किस्म की बात करना अवाम के जज्बात को उनकी ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। नाअहलियाँ विफाक से लेकर सूबे तक अब अयां हो चुकी है। इन बयानबाजियों से वो अपने नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते। वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिन रात बयानात तब्दील करते रहते हैं। सुबह कोई बयान देता है तो शाम को उसकी नफ़ी करते हैं और फिर उनकी करप्शन के जो किस्से कहानियां हैं, इससे में तो माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। देखिए, इसमें मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर चुका हूं। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में फंसा हुआ आदमी जितना भी निकलने की कोशिश करता है उतना ही दलदल उसे अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि विफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई। यहाँ तक कि जो ब्लैक लिस्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था और दिवालिया होने के किनारे पे खड़ा था, नई हुकूमत ने IMF के ज़रिए उसके साथ जो बेहतरीन और हिकमत अमली से भरपूर डीलिंग हुई, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। और अब ये सूरत हाल है कि अगर मुल्क में बेचैनी रहती है और जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। ज़ाहिर है कि जब अनरेस्ट होगा तो कारोबार भी मुतासर होगा। जब आपके मुल्क में अनरेस्ट होगा तो बाहर की जो आपको इमदाद देने वाले ममालिक हैं वो भी अपने हाथ रोक लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में आ जाए जो कल उसी तरह हमारे गले पड़ जाए जैसे माजी के 3.5 सालों में पड़ गई थी। तो इस सूरत हाल से भी सियासी तौर पर ही हमें निकलना होगा और विफाक इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ज़ाहिर है जी कि इस वक्त दो सूबों में विफाक के दोनों अतराफ में इनकी हुकूमत है और उसके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया जा रहा है। तो उन मुश्किलात के जो मरकज़ पे हमले हो रहे हैं एक बड़े खूबसूरत हिकमत अमली के साथ
हम उसको डिफेंड कर रहे हैं और उसका दिफा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। मौलाना साहब क़याम अमल के लिए ये कहा जा रहा है कि की हुकूमत जो है ना बना दी जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आया सियासी जमातें हुकूमत को तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? इस हवाले से कोई ऐसी तजवीज़ हमारे नोटिस में नहीं है। पता नहीं सोशल मीडिया पर हर चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। मौलाना साहब आप क्या समझते हैं क़याम अमल के लिए रियासती जो पॉलिसियाँ है उसमें तब्दीली ज़रूरी है, और उसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था कल भी होने जा रहा है, उसमें आप क्या तजवीज़ देंगे? आपने कुछ सुना होगा उसमें कुछ? जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, इसके जो तजावीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत को आज ही कन्वे कर दी जाएंगी, ताकि कल जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो तो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उनके सामने मौजूद हो। अच्छा, एक तो दो सूबों में आपको खुद कहा है कि पीटीआई की हुकूमत है, विफाक के लिए ये हुकूमतें जो मुश्किलात बना रही हैं, और मुल्क में माशी बहरान भी है और साथ में बदमनी भी बहुत है, तो इस तमाम हालात का हल क्या है? सियासी तौर पर सर इंतखाबात क्या वक्त पे होंगे या वक्त से पहले होने चाहिए? क्या ये हुकूमत को एक्सटेंशन मिल रही है सर इन हालात को कंट्रोल करने के लिए? क्या क्या होने जा रहा है? आपके मुंह में गुड़ इंशाअल्लाह। अगर इस साल में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बात है, क्योंकि अवाम ये नहीं समझती कि मीशत किस तरह है। अवाम ये सोचती है कि आटा इमरान खान की हुकूमत में 1300 रुपये था, अब 2600 रुपये है। चीनी वहाँ उस वक्त कितनी भी थी, अब मकसद ज़्यादा हो गई कीमतें। तो मकसद अवाम को आप लोग कैसे समझाएंगे कि हमने हुकूमत को सही सी बात में? बहुत सी बातें थी कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी, और एक प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हो जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल जहाँ दूसरे मामलात पर बेहतर हुई है और आवाम के शऊर में और उनकी आगाही में इजाफा हुआ है, और उन्होंने असल हक़ाइक़ का इदराक किया है। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मनसूबे हैं, जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स को रोका, उसको मुंजमद कर दिया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी नज़र में सी पैक बहुत बड़ा मनसूबा था, और काशगर से लेकर गवादर तक, तो इस गवादर की जो गहराई है ये खित्ते की सबसे बड़ी गहराई थी। कराची से भी ज़्यादा गहरा, चाबहार से भी ज़्यादा गहरा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा गहरा, दुबई से भी ज़्यादा गहरा, जद्दा से भी ज़्यादा गहरा समंदर आपके पास था गवादर का। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम गए हैं तो 8.5 फुट जो है वो गहराई उसकी रह गई है। मिट्टी आते आते उसने भर दिया उसको, अब दोबारा उसको मिट्टी को पीछे धकेला जा रहा है ताकि समंदर को उसी मकाम पर लाया जाए और वहाँ पर बैनुल-अक़वामी एक बंदरगाह जो है वजूद में आए। अब ये चीज़ें हैं कि जिस इक़दामात में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर पब्लिक में आपको एक एतमाद दोबारा बहाल होगा, और इसी तरफ हम जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है और कितना उसने मुल्क की मईशत को डबोया है। ये काम, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद जो इमरान खान के दाएं बाएं रहे हैं उन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है, और ये कहकर एतराफ़ किया है कि फजल रहमान कहता है कि ये बाहर का एजेंट है, हम नहीं मानते थे, हम इस बात से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जिस अंदाज से मुल्क डूबा है और डुबोया जा रहा है ये बगैर एजेंडे के हो नहीं सकता। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि वाकई मुल्क को डुबोने के एजेंडे पे तो नहीं आया था। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पांव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में क्यों चला गया है कि जो दोबारा इस मझदार से मुल्क की किश्ती को साहिल पे ले जाने की तरफ रवा था। मौलाना साहब ये बताएं कि जिन पॉइंट्स पे एपीसी आज हुआ है, इससे आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को काउंटर करना था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे जो करप्ट है वो आई है, उस पे कोई बात नहीं हुई एपीसी में। तो ये सिर्फ एपीसी का एजेंडा अमन अमान था, अपने एजेंडे तक हम जरूर महदूद रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं
फिर मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दूसरी करूंगा तो आपसे बात करूंगा। आपके पार्टी के गवर्नर को गवर्नर हाउस में बंद करने की बातें हो रही हैं। आपने कहा कि अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो इनको गवर्नर हाउस तक बंद करेंगे, क्या कहते हैं आप इसको? न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये बताइए कि वफाक हमारा मखलूक है, आपको पता है, और यहाँ पर हर मिनिस्टर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि वफाक अगर हम पैसे नहीं देंगे तो दिवालिया हो जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो इस हवाले से एमपीसी में कुछ बात हुई है? हम कैसे पैसे दें इनको? आप खुद सोचें जरा। एक वज़ीर आला रोजाना कहता है मैं असेंबली तहरीर कर दूंगा, मैं हुकूमत तहरीर कर दूंगा। एक तरफ हुकूमत की किश्ती को डबोने की बातें हो रही हैं, एक तरफ आप मरकज से इनको पैसे दे दें, ये तो अपने मुल्क को गर्क करने वाली बातें होंगी जी। तो वो एक बात पर तो ठहरे ना, या हुकूमत करे या फिर मईशत को संभाले। अगर हुकूमत नहीं कर सकते और वो मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, तो जो हुकूमत बार बार कह चुकी हो कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मुल्क का पैसा दे दे, मुल्क का पैसा और गर्क कर रहा है आपने। मौलाना साहब, एपीसी है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, और हमेशा ऐसे ही कॉन्फ्रेंसों में तमाम जमातें होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत की जिम्मेदार जो हुकूमत है उसकी जमात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तकरीब वाले हैं उसको तामीर में शरीक नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने से कुछ दो बात मुंतकिल किए आपके इल्म में? आज इजलास में उसके कुछ हमने आवाज़ सुनी है उसकी। आप नजमुद्दीन खान साहब ने बात की आज इसके ऊपर की, वो तो तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। अपने घर मुंतकिल किए। हमने तो आज तक अमरीकी इमदाद में कोई खैर नहीं देखी है। अगर कोई खैर कहीं नजर आ रहा है तो देख लेंगे हम भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।